Hello future doctors, welcome to NEET Ultimatum. Yes, we are here, we are working to achieve the dreams. So with this, let's start our practice question part 2 of the video, practice question part 2 of living world. हम इसमें भी क्या करेंगे, थोड़ा question practice करेंगे, so for a better understanding and for our confidence. So with this, let's start our first question of the day without any wasting our time. Okay, time is so precious for yourself and for myself as well. Okay, first question of the day is quick referral system in taxonomic studies. Please, I want direct answers without any hesitation. Please be louder. Herbaria, right, very good. Then zoological parks. Okay, here living animals. देन अंडर ह्यूमन केयर एंड प्रोटेक्शन में रखे जाते हैं. एक्सी2 कंजर्वेशन है. टूरिज्म इज समथिंग एक्स्ट्रा. ओके, मैं आप लोगों को इतना रिकॉल करा दी. नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस. हैव प्रिजर्व एनिमल स्पेसिमेन, नो. लिविंग एनिमल्स रहते हैं वहाँ पर. हैव वाइल्ड मैमल्स ओनली, एब्सोल्युटली नॉट. डोंट इंक्लूड बर्ड्स, एब्सोल्युटली नो. देन आर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. ओके, दिस ऑप्शन D is correct for the second question. Now in herbarium, sheets are arranged according to universally accepted, please forgive me for the handwriting, universally accepted principles of classification. Okay, universally accepted principles of classification. Okay, now for the first question आपका direct, it is zoological parks, identification of animal जहाँ पर living रहते हैं. then herbaria, universally accepted principles of classification is direct line of NCERT. now our fourth question of the day is, then see here, please FDs focus here. Study of all living organism is made possible by this aspect of taxonomy. Okay, आप लोग NCERT से बाहर का आप लोग मत सोचिए. आप लोग कुछ भी आप लोगों को सुना है, NCERT में ही उसका आंसर सर्च करिए. देखिए, मेड पॉसिबल इन द सेंस ईजी. कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है टैक्सोनॉमी का जो स्टडी ईजी कर रहा है? यस, वी हैव स्टडीड दिस इज क्लासिफिकेशन. ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन इज फाउंड इन एनी वन टैक्सॉन. डायरेक्टली हर कोई बोल सकते हैं, दैट इज मोनोग्राफ्स. नाउ अब सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ द डे. म्यूजियम्स के रिलेटेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थी एंड वी हैव क्लियर इट इन आवर लेक्चर्स. ओके, नाउ वी विल सी द ऑप्शंस एंड वी विल फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द सिक्स्थ क्वेश्चन. ओके, नाउ प्लीज फोकस हियर प्लीज. लिविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स के आप लोगों को लिविंग और कलेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. Okay, now option B, dried and preserved specimen, no. Animal kept in the natural habitat, absolutely no. देखिए, यहाँ पर आप लोगों को preserved plant भी दिखेंगे and animal specimen भी दिखेंगे. So the appropriate and the most correct answer of sixth question is option D. Okay, with this we have completed our 6 questions today of the day, I mean. Then now our 7th question. A pair of contrasting characters in a key are called, please बोलिए. A pair of contrasting characters in a key are called couplet and each statement is called lead. Yes, we have studied keys in very detail. Pair of contrasting characters are called couplet and each statement in a key is called as lead because वो lead कर रही है, इसीलिए इसको lead बोलेंगे. And both leads are contrasting to each other and they both together are called as couplet in a key. Okay, so with this we have completed our 7th question. Now 8th question. Botanical gardens have. बॉटनिकल गार्डन्स, प्लीज़ हम लोग रिकॉल करेंगे. लिविंग प्लांट्स स्पेसिमेन, लिविंग प्लांट्स दिखेंगे आप लोगों को फॉर रेफरेंस. देन एंड आप लोगों को उसका बोटानिकल नेम एंड फैमिली दिखेगा. ट्रीज लेबल करेंगे. एंड हम क्या पढ़े थे बोटानिकल गार्डन में? और प्लीज़ बोलिए, बोटानिकल गार्डन हम पढ़े थे कौन सा ज़्यादा बड़ा बोटानिकल गार्डन है? NBRI, और इंग्लैंड का पढ़े थे हम लोग, लखनऊ का पढ़े थे, हौरा पढ़े थे. एंड और क्या पढ़े थे? बोटानिकल गार्डन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बिलोंग करता पढ़े थे. ठीक है, हम इतना रिकॉल कर लिए बोटानिकल गार्डन्स के बारे में. नाउ वी विल सी द ऑप्शंस. आप लोगों को नीट एग्जाम में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि आप लोग सिर्फ बोटानिकल गार्डन देख के सब ज़्यादा रिकॉल करो, ऐसा कुछ नहीं करना है. मैं जस्ट आप लोगों की प्रैक्टिस आप लोगों को बार बार रिकॉल करा के परफेक्ट कराने के लिए ये कर रही हूँ. आई एम अप्लाइंग दिस फॉर्मूला फॉर यू पीपल. इफ आई विल रिकॉल यू अगेन एंड अगेन, इफ आई विल रिकॉल द थिंग्स अगेन एंड अगेन, देन इट विल fix in your mind. That is my aim. If it will it will be in your mind forever. So that is my aim. So for आप लोग ईजी से एग्जाम ईजिली नीट एग्जाम लिख के रहो. लेकिन हर क्वेश्चन को सिर्फ बोटानिकल गार्डन्स देख लेके आप लोग सब रिकॉल कर रहे हो, दैट इज़ नॉट द करेक्ट थिंग. ओनली आप लोगों को 1 मिनट होगा एक क्वेश्चन के लिए, इसीलिए आप लोग को अच्छे से, एंड आप लोग को 1 सेकेंड भी प्लीज़ टाइम लीजिए, बट
आप लोग इतना परफेक्टली पढ़ के जाइए बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आप लोग को कम से कम टाइम में हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. ओके, नाउ आवर 8th क्वेश्चन इज बोटानिकल गार्डन हैव लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन. क्या आप लोगों को दिखते हैं? नो. कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, यस. सो और ऑप्शन बी इज करेक्ट, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स. बट हम ऑप्शन सी भी देख लेंगे. प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, नो. लिविंग एंड प्रिजर्व प्लांट्स, नो. सो आवर अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 8th क्वेश्चन इज कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट. डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है. प्लीज़ अगर आप लोग नोट्स भी अच्छे से पढ़ लो या फिर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, देन इट इज़ वेल एंड गुड फॉर यू पीपल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स. प्लीज़ फोकस हियर. देन अवर 9th क्वेश्चन ऑफ द डे, हर्बेरिया आर यूजफुल इन व्हाट? अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन. क्या हम डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ऑब्जर्विंग द हैबिटेट, ये इंडिकेट लिस्ट ऑफ प्लांट, क्या हम हर्बेरिया में ये पढ़े थे? प्लीज़ रिकॉल. नो, हम हर्बेरिया में सब कुछ नहीं पढ़े थे. हम किस में पढ़े थे? प्लीज़ आप लोग बोलिए मुझे. हम डिस्ट्रीब्यूशन एरिया वाइज, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया वाइज एंड उसके लिस्ट है, इंडेक्स है, हम किस में पढ़े थे? क्या हम ये फ्लोरा में पढ़े थे? प्लीज़ आप लोग बोलिए. हम किस में एरिया वाइज पढ़े थे? क्या हम फ्लोरा मैनुअल्स में पढ़े थे? प्लीज़ यस और नो, प्लीज़ बोलिए. ठीक है, बट यहाँ पर आप लोग को देखिए ऑप्शन कौन सा सही है. हर्बेरिया आर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. ओके, एंड हर्बेरिया में आप लोग को कैसे प्लांट दिखेंगे? डेड प्लांट जो ड्राइड, प्रेजेंट, प्रिजर्व, डीपीपी है. ठीक है, लेबल दिखेगा, उसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिखेगी. ठीक है, एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन में हम क्लासिफिकेशन के थ्रू हम हर्बेरियम शीट्स को अरेंज करेंगे. एंड हर्बेरियम इज स्टोर हाउस ऑफ हर्बेरियम शीट्स. ओके, वी हैव रिकॉल्ड एवरीथिंग अबाउट हर्बेरियम्स. नाउ अवर 10th क्वेश्चन इज नेशनल, क्या है ये? नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, प्लीज़ आई वांट डायरेक्ट आंसर्स. लखनऊ. ओके, मैं आप लोगों से पूछा थी कि लखनऊ से आप लोगों को क्या याद आ रहा है, एंड द हिंट वो CDRI. क्या आप लोगों को कुछ याद आया? प्लीज़, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. आई हैव मैं आप लोगों को फुल फॉर्म भी दे दी वो CDRI का. अब आप लोग प्लीज़ मुझे बोलिए कि व्हाट आप लोगों को क्या आया मन में? लखनऊ, CDRI, लखनऊ की मतलब बहुत सारी चीज़ें. मैम लखनऊ की ये स्वीट अच्छी. आई एम नॉट आस्किंग दैट बाबा, आई एम आस्किंग CDRI. आप लोगों को हिंट है CDRI, आप लोग उसके बेस पे बोलिए, ना कि लखनऊ की मैम वो मुझे पसंद है, वो पसंद है. दैट इज समथिंग अनदर एस्पेक्ट. आई एम गिविंग क्लू दैट इज CDRI के बेस पर बोलिए आप लोग. ओके, प्लीज़, नो शरारत. ओके, नाउ 11th क्वेश्चन, प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट आर फाउंड इन. हम अभी रिकॉल करें, दैट इज हर्बेरियम. ओके, नाउ 12th क्वेश्चन, दैट इज हर्बेरियम शीट्स लेबल प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट. हम अभी बोले कि लेबल में इन्फॉर्मेशन है, बट कौन सी इन्फॉर्मेशन है? प्लीज़ हम ऑप्शन देखेंगे. वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स, नो, एब्सोल्युटली नो. हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, नो. All preserved plant specimen, no. Then our correct option is C, that is date and place of location. Date, place of location, name of collection, common name, English name, botanical name and name of the family. हमें इतनी सारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें लेबल प्रोवाइड करता. बट एज द ऑप्शंस, our correct option is C. Okay, now let's focus on our 13th question. That is 13th question. Okay, please. Museums have plant and animal specimen preserved in solutions. ओके, यस. हमें हम किस में बोले थे? प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में. स्मॉल एनिमल जिसमें से थोड़ा फ्लूइड्स में निकल सकता है, हम उसको प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में जार्स में रखेंगे, राइट. देन यहाँ पर हम प्लांट्स भी रखने की बात कर रहे थे, तो सक्यूलेंट है म्यूजियम में, यस. देन ये ऑप्शन करेक्ट है. स्टफ्ड एंड प्रिजर्व बर्ड्स एंड मैमल्स, यस, ये तो डायरेक्ट है कि मैमल्स एंड बर्ड्स को हम स्टफ्ड एंड प्रिजर्व करेंगे. देन हम थोड़े एनिमल्स के हम स्केलेटन्स भी रखते हैं. हमने कहा था लाइक डायनासोर एंड एटसेट्रा. सो इसका ऑप्शन क्या है? यस, ऑल ऑफ द अबव. ओके, नाउ द 14th क्वेश्चन इज अ टैक्सोनॉमिक एड कॉल्ड की इज. की के बारे में है. प्लीज़ देखिए आप लोग, देखिए, यूजफुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, नो. बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, हियर इज अवर करेक्ट ऑप्शन, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज. एंड देखिए सी देखिए, एंड इंडेक्स टू फॉर्म अ पर्टिकुलर एरिया, नो. नो, एब्सोल्युटली नो. कॉमन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज अवर की इज, राइट. सो वी हैव कंप्लीटेड 14 क्वेश्चंस. नाउ आवर 15th क्वेश्चन इज हियर. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट्स जस्ट रीड इट आउट.
लिविंग स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट के लिविंग स्पेसिमेन एंड एनिमल स्पेसिमेन कहाँ पर आपको दिखेंगे रेस्पेक्टिवली। देखिए लिविंग प्लांट स्पेसिमेन आपको कहाँ पर दिखेंगे, यस बोटानिकल गार्डन में, एंड लिविंग एनिमल्स कहाँ पर लगेंगे आप लोगों को, जूलॉजिकल पार्क। सो द ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। क्या आप लोगों को हर्बेरिया में लिविंग प्लांट दिखते, नहीं, जू में सॉरी डेड प्लांट्स दिखेंगे आप लोगों को, एंड जू में आप लोगों को लिविंग एनिमल्स दिखेंगे, यस, लेकिन बी में हर्बेरिया इज़ नॉट करेक्ट। देन सी देखिए म्यूजियम्स में क्या आप लोगों को लिविंग प्लांट दिखेंगे, नो, आप लोगों को डेड प्लांट दिखेंगे, वो भी सक्यूलेंट टाइप्स। एंड देखिए मोनोग्राफ देखिए, तो यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट दिख रहा कि मैं आप लोगों को इसे कंफ्यूज नहीं करना चाह रही हूँ, बट हमारा बोटानिकल गार्डन में हमें लिविंग प्लांट दिखेगा एंड जूस में हमें लिविंग एनिमल्स दिखेंगे। नाउ अब देखिए लीड इज, अब हमें लीड के बारे में आ गया। ई स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड, यस, सो इट इज सो डायरेक्ट दैट ई स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज lead. Okay, now very good. Now our 17th question of the day is here. देखिए the famous international botanical garden is at, ये हम पढ़े थे कि that is England, क्यू में हमें दिखेगा that is England, वर्ल्ड लार्जेस्ट है। देन देखिए इन zoological parks के बारे में है, animals are protected under human care, yes, animals are kept in artificial habitat, okay, no, this is not correct, and XC2 है, एनिमल स्पेसिमेन आर प्रिजर्व, नो, एनिमल एंड प्लांट के आप लोगों को प्लांट दिखेंगे, नो। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर zoological parks। देखिए अब 19th क्वेश्चन, बोटानिकल गार्डन्स हैव ड्राइड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, नो, प्लांट ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, प्लांट ग्रोन इन द ओरिजिनल एंड नेचुरल हैबिटेट, नो। सो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर 19th क्वेश्चन, राइट। तो देखिए बोटानिकल गार्डन हैव प्लांट ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस, यस, और जोलॉजिकल पार्क्स में हमें क्या देता है, अंडर ह्यूमन केयर हम क्या है, एनिमल्स को रख रहे हैं। एंड हमारा इंटरनेशनल बोटानिकल गार्डन इंग्लैंड में है, ठीक है, ये हम ये कंप्लीट कर लिए। देन ई लीड क्या है हमारा, ई स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड एज लीड। उसके बाद हमें लिविंग प्लांट दिखेगा बोटानिकल गार्डन में एंड लिविंग एनिमल दिखेंगे हमें जूस में, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 15th हो गया। एंड देन ए टैक्सोनॉमिक कॉल्ड की इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ये तो हमारा डायरेक्ट था। देन म्यूजियम हैव ऑल द अबव, ठीक है, ये भी सही है। देन देखिए 12th क्वेश्चन, हर्बेरिया शीट प्रोवाइड लेबल दैट इज डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, हम सब अभी ये देख लिए। देन देखिए प्लांट स्पेसिमेन दैट इज ड्राइड प्रेजेंट प्रिजर्व आर सीन इन हर्बेरियम, यस, NBRI इज सीन इन लोकेटेड इन लखनऊ, यस और नो। मैं आप लोगों को फिर से रिकॉल कराना चाह रही हूँ, हर्बेरिया आर यूजफुल इन identification purpose, yes. Then देखिए botanical gardens have collection of living plants, yes. A pair of contrasting characters in a key is called couplet, yes. Then देखिए 6th question, that is museums have what, preserve plant and animal specimen, yes, very good. Information on any one taxon is monograph, that is option C. Study of all living organism is made possible by this aspect of taxonomy, that is classification. Now our third question, that is herbarium sheets are arranged according to universally accepted principle of classifications. Then our second question, that is zoological parks are useful in identification of animals, okay. Then quick referral system in taxonomic studies is herbaria, that is option B, okay. With this we have completed our practice question 2 video, practice question पार्ट 2 ऑफ लिविंग वर्ल्ड। सो हम और क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूँगी मैं आप लोगों के लिए। आप लोग प्लीज़ आप लोगों की खुद ही से सेल्फ इंटरेस्ट दिखाइए, सेल्फ इंटरेस्ट इज ड्राइविंग फोर्स टू अचीव योर ड्रीम्स। सो प्लीज़ आप लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए एंड विद दिस वी विल एंड अवर क्लास टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, ओके, टेक केयर, बाय बाय। सो प्लीज़ अब्डीज बिफोर लिविंग आप लोग प्लीज़ बोल के जाइए वाई वी आर हियर, प्लीज़। आप लोग बोलोगे मुझे पावर आएगा एंड यू टू विल गेट पावर, दैट इज ओपी, ओके। प्लीज़ बोलिए वाई वी आर हियर, वी आर हियर एंड वी आर वर्किंग टू अचीव द ड्रीम्स, ओके। विद दिस टेक केयर, बाय बाय।